اسرائیل کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی مان لی۔ ٹرمپ اسرائیل پر برہم، کہا اسرائیل نے دوبارہ حملہ کر کے کچھ حاصل نہیں کیا، مجھے برا لگ رہا ہے، اسرائیل سمجھوتے سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اسرائیل سے خوش نہیں ہوں، مشرق وسطی میں جنگ ختم ہونی چاہیے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ ہم نے ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ کر دی ہیں۔ ایران کے حملے قطر کے لیے دھچکا تھا، ہمیں حیرت ہوئی اور یہ دونوں ممالک کے تعلقات پر اثر ڈالیں گے۔ دوحہ میں لبنانی وزیراعظم نواب سلام کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں قطری وزیراعظم محمد بن عبد الرحمن نے کہا کہ قطر نے خطے میں بڑھتی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ ایران اسرائیل جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا۔ امریکی دوستوں نے مشورہ دیا ایران سے بات چیت کا آغاز کیا جائے۔ لبنانی وزیراعظم نے کہا اسرائیلی حملے ایران کے خود مختاری کے خلاف ورزی تھے، ایران کے خود مختاری کو کسی صورت نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، اسرائیل نے ایران کے مختلف شہروں میں پھر حملے کر دیے۔ جنگ بندی سے قبل ایران کے اسرائیل پر تباہ کن حملے، ایرانی حملوں کی تازہ لہر نے مقبوضہ علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ایرانی حملوں میں کم از کم 11 صہیونی آبادکار ہلاک، 3 زخمی ہوئے۔ بیر الصبا میں میزائل حملے میں 7 منزلہ عمارت تباہ، تل ابیب، مغربی کنارے اور مقبوضہ القدس میں بار بار سائرن بجتے رہے۔ صبح 6:33 پر اسرائیلی حکام نے شہریوں کو پناہ گاہیں چھوڑنے کی اجازت دی، 1 منٹ بعد ہی دوبارہ چوتھے میزائل حملے کی وارننگ دے دی۔ اسرائیلی میڈیا نے صبح کو انتہائی مشکل قرار دیا۔ اسرائیل کی جنگ کو پھر ہوا دینے کی تیاری، ایران کے خلاف جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، صہیونی وزیر دفاع کا تہران پر شدید حملے کا حکم۔ اسرائیل نے الزام لگایا ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، ایران کی جانب سے مبینہ طور پر بیلسٹک میزائل داغے گئے جنہیں اسرائیلی دفاعی نظام نے کامیابی سے روک دیا۔ تہران نے تردید کر دی، اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے میزائل حملوں کا دعویٰ مسترد۔ ایرانی دفتر خارجہ کے مطابق صہیونی حکومت ایرانی عوام اور حکومت کے خلاف ایک بار پھر نفسیاتی جنگ چھیڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایرانی قوم جنگ کی خواہش مند نہیں، لیکن اگر اس پر کسی نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ہم نے کسی پر حملہ نہیں کیا اور نہ ہی ہم کسی کے حملے کو قبول کرتے ہیں۔ جنگ بندی سے پہلے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے آپریشن بشار الفتح سے متعلق تصویر کے ساتھ جاری پیغام میں لکھا کہ ہم کسی کے حملے کے آگے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، یہ ایرانی قوم کی منطق ہے۔ جنگ بندی صرف اسرائیل حملوں کی بندش سے مشروط، اسرائیل کے ساتھ کوئی باضابطہ معاہدہ نہیں ہوا، ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا۔ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران نے صرف اس شرط پر حملے روکنے پر آمادگی ظاہر کی کہ اسرائیلی جارحیت صبح 4 بجے تک مکمل طور پر بند ہو جائے۔ ایرانی افواج نے آخری حملے تک اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دیا، اگر اسرائیلی قبضہ برقرار رہا تو ایران کا رد عمل دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ ایران نے جنگ شروع نہیں کی بلکہ اسرائیل نے جارحیت کی ابتدا کی۔ پاسداران انقلاب نے فتح کا اعلان کر دیا، ایرانی عوام اور مسلم امہ کو مبارکباد۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ 3 جوہری تنصیبات پر حملوں کا بھرپور جواب دیا گیا۔ امریکی صدر نے صہیونی حکومت کو بچانے کے لیے قوم کی قربانی دی، آئندہ جارحیت کا جواب پہلے سے بھی زیادہ تباہ کن ہوگا۔ جنرل پاکپور نے کہا کہ ایرانی فوج ہر حملے کا آخری لمحے تک جواب دے گی۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں 610 شہری شہید اور 4700 زخمی ہوئے۔ وزارت صحت نے ترجمان کرمان پور نے ایکس پر ایک پیغام میں کہا گزشتہ 12 دن کے دوران اسپتالوں کو انتہائی دل دہلا دینے والے مناظر کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تعداد پہلے بتائی گئی 400 سے زائد اموات اور 3056 زخمیوں کے اعداد و شمار سے بڑھ گئی۔ تنصیبات پر حملے کے بعد جوہری پروگرام کا تسلسل یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر لیے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایران کے ایٹمی توانائی تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ تنصیبات کو دوبارہ فعال کرنے کے منصوبے پہلے سے تیار کر لیے گئے تھے اور ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ پیداوار اور خدمات میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ ایران کا قطر پر امریکی ایئر بیس پر حملہ مکمل ہونے کے بعد فضائی راستے بحال، قطر، امارات اور دیگر خلیجی ممالک نے ایئر اسپیس کھول دی۔ PIA کا فضائی آپریشن بحال، پاکستان سے قطر، بحرین، کویت اور دبئی کا فضائی آپریشن شروع کر دیا گیا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। अमीर कतर और आवाम से गुज़िश्ता रोज़ के हमलों पर इजहार यकजहती। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के सफ़ीर से भी मिले। मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के ब्रदर अवाम की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का इआदा। कहा, पाकिस्तान बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए क़याम अमन के लिए काम करता रहेगा। सऊदी अरब का ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, जंग बंदी के लिए कोशिशों और जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है फरीकैन कशीदगी में कमी के लिए जंग बंदी पर अमल दरामद करेंगे। जंग बंदी का मुआहिदा इस्तेहकाम सलामती में मददगार साबित होगा। सऊदी अरब तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर देता रहेगा। पाकिस्तान का खित्ते में सलामती की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कतर में अमरीकी अल अदीद एयरबेस पर हमले खित्ते में कशीदगी का सबब बने। बैनुल अक़वामी कानून के बुनियादी उसूलों की पासदारी पर जोर देते हैं। फौरी तौर पर कशीदगी कम करने के इक़दामात की ज़रूरत है। खुशाइन बात है और मैं समझता हूँ कि ईरान की मुस्तकिल मिजाजी, उसका हौसला जो है ना, उसकी फतह। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर खुशाइंद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ईरान ने अच्छी तरह अपने से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। ईरानी हुकूमत और अवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। जंग बंदी से साबित होता है इसराइल के दावे झूठे हैं। सदर ट्रंप और उनकी टीम नाकाबिले एतबार करार। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, अमरीकी सदर का उसूल धोखा देना और जारहियत मुसल्लत करना है। ईरान जितनी सेहोनी तोते की गर्दन मरोड़ेगा, उतनी ही बावकार जंगबंदी अमरीकी जादूगरों से हासिल कर लेगा। गजा पर इसराइली हमलों का खात्मा और गजा की बहाली जंगबंदी का हिस्सा होना चाहिए। ईरान की IAEA से ताउन मुअत्तल करने की तजवीज़ मंजूर। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने करारदाद की मंजूरी दे दी। ईरानी पार्लियामेंट ने कहा, IAEA सियासी तासुब का शिकार हो चुकी है। IAEA चीफ ग्रोसी पर ईरान में मुस्तकिल पाबंदी की तजवीज़। ग्रोसी ने ईरान से 60% यूरेनियम की तफसीलात मांग ली। ईरानी नुमाइंदे का UN सिक्योरिटी काउंसिल में ग्रोसी के खिलाफ एहतजाज। ग्रोसी पर जानिबदारी और कानूनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामी का इल्ज़ाम। ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान का किरदार उभर कर सामने आया। पाकिस्तान ने ईरान का खुलकर साथ दिया। ईरान ने खित्ते में अपनी बालादस्ती का सबूत दिया। इसराइल का रिजीम चेंज का मकसद नाकामी से दो चार हुआ। पाकिस्तान एक इलाकाई इस्तेहकाम के ज़ामिन मुल्क के तौर पर उभरा। जंग के दौरान भारत का दोगला चेहरा खुलकर सामने आ गया। भारत, जो खुद को ईरान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर जाहिर करता रहा, जंग के वक्त भारत ने ईरान को धोखा देते हुए खुलकर इसराइल का साथ दिया। हनूद और यहूद का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब खित्ते का अमन दाव पर लगा दिया। मोदी हुकूमत इसराइल की प्रॉक्सी के तौर पर काम करने लगी। हनूद और यहूद के गठजोड़ से खित्ते के तवाज़ुन पर भी मनफी असरात। इसराइल खित्ते में ईरान के असर को कम करने के लिए कुर्दों को सपोर्ट कर रहा है। ज़राए के मुताबिक यही नेटवर्क BLA जैसे ग्रुपों तक रसाई देता है। कलदन तंजीम BLA और कुर्द हनूद और यहूद की प्रॉक्सीज के तौर पर काम कर रहे हैं। गजा में सेहोनी दहशतगर्दी जारी। इसराइली हमलों में मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद। 13 फ़लस्तीनी इमदाद लेते हुए गोलियों का निशाना बने। इमदादी मराकज़ पर हमलों में 27 मई से अब तक 400 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। जबालिया, बैतुल्लाहिया, नसीरात कैंप में तबाही, दर्जनों ज़ख्मी। शुजाइया और सलाहुद्दीन स्ट्रीट पर भी गोलाबारी। 16 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 56,000 से ज़ायद हो गई। 1,30,000 ज़ख्मी। ईरान इसराइल जंगबंदी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे आने लगीं। खाम तेल ब्रेंट की कीमत तकरीबन 9% गिर गई। खाम तेल ब्रेंट की कीमत $70 फ़ी बैरल पर आ गई। WTI खाम तेल की कीमत मजीद 7.22% कम होकर $68.51 फ़ी बैरल हो गई। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1 घंटे के वक्फे के बाद कारोबार का आगाज। इंडेक्स में तेजी बरकरार। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 5,600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,21,700 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है।
बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने एटीसी लाहौर का बानी पीटीआई की जमानतें मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस शहबाज रिजवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद कुल दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से 15 जनवरी को दरखास्तें दायर की थीं। बानी पीटीआई ने कोर कमांडर हाउस हमला समेत 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें दायर की थीं। मेरा ख्याल है माइनस बानी पीटीआई हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट पास करने के लिए बानी पीटीआई का 2 दिन भी इंतजार नहीं किया। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर अपनी हमशीरा उज़्मा खान के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केपी हुकूमत को बजट पास करने की क्या जल्दी थी। बजट में बानी से क्या छुपाया गया है। इसे पास करने के लिए बानी का 2 दिन भी इंतजार नहीं किया गया। मैं तो हैरान हूँ कि केपी के एमपीएज ने इस पर बहस नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़िडोंग की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल, ईरान इसराइल तनाज़े में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को पाक चीन 2 तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान CPEC के जारी मंसूबों के कामयाब निफाज के लिए चीन के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ कम करने की तफसीलात सामने आ गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, इनकम टैक्स की शरह में कमी का रिलीफ मिलेगा। 50,000 माहाना तनख्वाह वाले मुलाजमीन को इनकम टैक्स की मुकम्मल छूट। 1 लाख माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स 2500 से कम करके 500 रुपए कर दिया गया। 1.5 लाख माहाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 10 से कम करके 6,000 रुपए मुकर्रर। ईरान इसराइल में जंगबंदी का आलमी मईशत पर भी मुस्बत असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी ज़बरदस्त तेज़ी। KSE 100 इंडेक्स में 6,089 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। KSE 100 इंडेक्स 1,22,246 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ज़बरदस्त तेज़ी के बाइस 100 इंडेक्स 6 नफ्सियाती हदें अबूर कर गया। सोने की फ़ी तोला कीमत में भी बड़ी कमी, 3,800 रुपये की कमी से सोने की फ़ी तोला कीमत 3,54,365 रुपये हो गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजाम से मुतालिक इजलास। इंतजामिया से फौरी हंगामी प्लान तलब। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा करने पर पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। SOPs महज पेपर पर नहीं, अमली तौर पर इक़दामात नजर आने चाहिए। काबीना अरकान मुतालिका अज़ला में मौसर निगरानी का फ़र्ज सर अंजाम दें। मरियम नवाज की हिदायत। मुल्क भर में 25 जून से शदीद बारिशों की पेश गोई। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद में बादलों की धुआंधार इनिंग्स, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। आज शाम से बारिशों के नए सिलसिले का आगाज होगा। महकमा मौसमियात की बड़ी पेश गोई, आज से 2 जुलाई तक मानसून का पहला स्पेल जारी रहेगा। कराची से बादल रूठ गए। शहर में आइंदा 2 रोज तक मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। 27 जून से शहर में गरज चमक के साथ तेज बारिश मुतवक्किल। और मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी का चांद 26 जून की शाम नजर आने का इम्कान। पार्कों ने पेशगोई कर दी। तर्जुमान के मुताबिक 26 जून को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 28 घंटे और 15 मिनट होगी। यकुम मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी 27 जून को मुतवक्किल है।